in today's video, we are going to understand the chapter number 11, which is file handling. But before that, let me remind you chapter 1 to 10. So, in chapter 1 to 3, we have understood about the composer, web page, website, waveform, CSS and JavaScript. So basically chapter number 1, 2, 3 is a totally a practical chapters. You will be get a practical among them. Then after chapter number 4 and 5, which is a theoretical chapter. We don't have any practical in chapter number 4 and 5. Then these both chapter number 4 and 5 is regarding a business. So we will get all the theories in that. Then after we'll go to chapter 6, 7, 8, 9 and 10, which is on the Java basics, right? You said chapter number 7 is Java basics, 8 is classes and object, 9 is working with array, and 10 is exception handling in Java. So you will be get a practical in chapter number 7, 8, 9 and 10. 4 chapter you will be have a practical based. Chapter number 1, 2, 3 also have a practical based. Then after 4 and 5 and 6, that is totally theoretical chapters. So in today's video we are going to understand file handling. So in this chapter you will be get all the theory, but I will also make you understand about all the practical that is come in that chapter. But don't worry, that is not comes in your exam. You will have to understand only theory portion. So let me start the chapter number 11 here, file handling. So let me open the chapter 11. Okay, so in this chapter we are going to understand all the concept that comes in a file portion, right? We have made lots of program, we have did a coding regarding Java, but here we have to understand how we are going to manage all these files in our folder, how to fetch it, how to find it, how to read it, how to write it, right? So this is the very basic information about all the files. So first, the first topic is understanding file in computers, right? So first of all, we have to understand the primary and secondary memory in a computer. Storage devices of a computer system can be broadly classified into two categories, which is a volatile storage and second one is a non-volatile storage. All we know that what is a volatile and non-volatile, right? Volatile that means primary and non-volatile that means सेकेंडरी मेमोरी. हम सबको पता है कि मेमोरी जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप सबको बताया था कि व्हाट इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो लेट मी रिमाइंड यू क्विकली हियर. सो हियर हमें क्या करना पड़ता है कि हम किसी पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर आता है डेटा. नाउ डेटा को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, राइट? डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पे स्टोर करना पड़ता है. सो स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी का यूज करना होता है. जैसे हमारे फोन में भी मेमोरी होती है, पीसी में भी मेमोरी होती है. फोन में मेमोरी हम बोलते हैं 32 GB, 128 GB, 64 GB, राइट? सो दैट इज अ स्टोरेज कैपेसिटी, राइट? सो इन दिस कंप्यूटर, इन आवर कंप्यूटर वी ऑल्सो हैव अ स्टोरेज स्पेस that is divided into two parts, which is primary and secondary. So in a primary that is a RAM and secondary is ROM. अभी इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि RAM that means क्या होता है कि हमने कोई प्रोग्राम अगर स्टार्ट किया है, टाइप किया है, अगर हमारी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, हमने चार्ज पर नहीं लगाया है एंड हमारा लैपटॉप किसी रीजन की वजह से शट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा प्रोग्राम हमने सेव भी नहीं किया, तो क्या होगा कि वो टेम्पररी हमारे स्टोरेज के अंदर सेव है. तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमारा पीसी अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो जाता है या तो पावर कट होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो पूरा प्रोग्राम हमने किया था वो प्रोग्राम हम लॉस कर देंगे, ठीक है. सो दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. फुल फॉर्म ऑफ रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. उसके नेम से हमें पता चल रहा है कि रैंडमली जो एक्सेस करता है मेमोरी को वो होता है प्राइमरी.
नाउ सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसके अंदर क्या होता है कि कोई लॉस होने की चिंता नहीं रहती। कैसे कि यहाँ पे रोम के एग्जांपल्स है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हमारी पेन ड्राइव, ठीक है, ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर अगर पावर सप्लाई हो ना हो, पावर कट हो जा रहा है, कोई भी सिचुएशन ऐसी अकर हो रही है, तो उसके अंदर हमारा डेटा जो सेव किया है वो लॉस होगा नहीं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो हियर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो सारा कंसेप्ट है वो फाइल के रिगार्डिंग है। अगर फाइल को हम सेव करना है तो सेव कहाँ पे और कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको यही बताया, यहाँ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल बोला है। तो रैम क्या है, हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि वो हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, वो टेम्पररी मेमोरी है, तो उसे हम वॉलेटाइल बोलेंगे। एंड रोम दैट मीन्स वो परमानेंट मेमोरी है, उसे बोलेंगे हम नॉन वॉलेटाइल। नाउ उसके बाद फाइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो भी फाइल के अंदर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स यूज हुए होते हैं वो टेक्स्ट फाइल होती है, जिसका एक्सटेंशन हो सकता है .txt, .java, राइट, जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स आते हैं, स्ट्रिंग्स आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं। सो वो क्या हो, हमारा टेक्स्ट फाइल हुआ। उसके बाद बाइनरी फाइल्स क्या है, वो मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम बाइनरी फाइल ओपन करेंगे तो उसमें हमें कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि बाइनरी दैट मीन्स क्या, 0 एंड 1, राइट। तो उसके अंदर वो मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, तो वो हमें पता चलेगा नहीं। सो यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, ठीक है। फाइल को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, टेक्स्ट एंड बाइनरी, दो। सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि टेक्स्ट फाइल कंटेन्स द डेटा दैट कैन बी रीड इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज द डेटा हैज बीन एनकोडेड यूजिंग अ स्कीम सच एज ASCII और यूनिकोड, ठीक है। ASCII वैल्यू क्या है हम सबको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सबको बताया था कि ASCII वैल्यू क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म याद रखना है हमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स क्रिएट थ्रू एडिटर्स लाइक gedit, vi, pico आर एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल। ओके, इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर में काम किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में काम किया है। कैसा सॉफ्टवेयर, तो कंपोजर से क्या था, हमारा सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ऐसे ही नोटपैड हमारा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि gedit, vi, pico ये सारे टेक्स्ट फाइल है और एप्लीकेशंस है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। gedit, vi, pico ये सारे उबंटू लिनक्स सिस्टम के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल यहाँ पे हमें दिए हैं। उसके बाद आता है बाइनरी। तो बाइनरी में मैंने बोला कि वो एनकोडेड नहीं होता, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया होता, दैट मीन्स वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में होता है। तो वो क्या होता है, मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज होती है, नॉट ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, सो एग्जांपल एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल्स आर जेपीईजी, MP3, क्लास, ये सारा जो होते हैं वो हमारी बाइनरी फाइल्स होती है, ठीक है। इसके बाद जावा लैंग्वेज कौन से ऑपरेशन को सपोर्ट करती है, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है। तो यहाँ पे क्या करता है, डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ फाइल और डायरेक्टरी, हमने फाइल कहाँ पे सेव की है, कहाँ पे रखी है, उसका पूरा पाथ हमें दिखाता है। अभी यहाँ पे पाथ क्या हो गया, तो लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, उसका टेक्निकल नेम यहाँ पे दिया है पाथ, ठीक है, कि मेरी फाइल कहाँ पे सेव की है। उसके बाद आता है ओपनिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, ठीक है, ओपन कर सकते हैं, रीड, राइट एंड क्लोज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेरीफाई द क्वेरिंग द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये फाइल कब जनरेट की है, किसने जनरेट की है, कौन सा एक्सटेंशन है, ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है फाइल की, उसे बोलते हैं क्वेरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। इसके बाद These classes are present in Java input output package। अगर आपको कोई पूछता है कि जावा किसके बेस्ड है, कौन से पैकेज में आता है, तो ये मेनली आपको याद रखना है कि जावा डॉट इनपुट आउटपुट पैकेज, जावा डॉट IO पैकेज। उसके बाद आता है फाइल क्लासेस इन
Java. Now what is a file classes in Java? So Java dot input output file class encapsulate the information about property of file and directory. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा पाथ आपको दिखाई देता है, पूरा उसका लोकेशन दिखाई देता है विथ उसकी लेंथ, उसका फाइल किसने जनरेट किया है, एक्सटेंशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारा हमें इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, उसके अंदर नियरली 13 मेथड्स है। ठीक है, 30 मेथड है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि उसके अंदर नियरली 13 मेथड्स हैं फाइल क्लास के अंदर जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर ऑफ अ फाइल क्लास। So file class we can create a reference of any file by providing its absolute path in a string format or by providing a relative path. Now absolute and relative path का डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब मेरे जो फाइल है उसका पहले से लास्ट तक पाथ, दैट मीन्स डी ड्राइव के अंदर मेरा एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने सीबीसी या तो जीएससीबी या तो एचएससी नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्टैंडर्ड 12 है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 11 है और उसके अंदर मैंने कोई फाइल सेव की। तो ये क्या हो गया, मेरा बेस से लेके मेरा ये लोकेशन मेरे को दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। एंड रिलेटिव पाथ दैट मीन्स उसके अंदर सिर्फ फाइल नेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव path. The file class provide following constructor to refer a file or directory. इसके 3 ways हैं इसे डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रिंग पाथ, फाइल के अंदर स्ट्रिंग पाथ। सेकेंड है फाइल स्ट्रिंग पाथ एंड नेम। यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, पाथ एंड नेम। फर्स्ट में क्या था, ओनली फाइल नेम, ये स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है और उसका पाथ। सेकेंड पाथ एंड नेम बोथ। एंड थर्ड वे क्या है, तो फाइल डायरेक्टरी एंड नेम। ठीक है, डायरेक्टरी एंड नेम, ये इसके 3 वेज हैं जनरेट करने के लिए। यहाँ पे उसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। हमें ये सारा कुछ यहाँ पे मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके समझाने वाली हूँ ये, सो वहां पे मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद फाइल मेथड का ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, मेथड ऑफ फाइल क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल नहीं आते हैं, अगर कोई करवाता है स्कूल में तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ, लेकिन इसके प्रैक्टिकल नहीं आते 90%। सो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। सो फर्स्ट वन इज, ये सारे क्या है, फाइल क्लासेस है। उसके अंदर फर्स्ट है बुलियन एग्जिस्ट। ये डेटा टाइप कौन सा है, बुलियन। तो बुलियन क्या होता है, रिटर्न क्या करता है, जीरो या तो सॉरी ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे क्या है, बुलियन एग्जिस्ट मतलब क्या करता है कि कोई फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट है, अगर है तो ट्रू हमें देगा, नहीं है तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। वैसे ही इज फाइल, बुलियन इज अ फाइल, ये क्या करता है तो रिटर्न करता है ट्रू इफ द फाइल इज एग्जिस्ट, अदरवाइज रिटर्न। यहाँ पे देखो एग्जिस्ट कीवर्ड आएगा तो क्या चेक करेगा, तो फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों को चेक करेगा कि ये दोनों है, और इज फाइल है तो उसके अंदर सिर्फ फाइल चेक करेगा। इज डायरेक्टरी है तो सिर्फ ओनली एंड ओनली डायरेक्टरी चेक करेगा। अगर डायरेक्टरी है एग्जिस्ट तो आपको क्या देगा, ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। बुलियन इज हिडन, क्या करेगा कि फाइल एंड डायरेक्टरी हिडन है तो ट्रू आपको रिटर्न करेगा। सो फर्स्ट 4 मेथड है वो क्या है, बुलियन मेथड, डेटा बुलियन से हमने डिक्लेयर की है, तो याद रखना एग्जिस्ट आएगा तो फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों चेक करेगा, इज फाइल है तो ओनली फाइल चेक करेगा, इज डायरेक्टरी है तो ओनली डायरेक्टरी, हिडन है तो फाइल हिडन है या नहीं वो चेक करेगा। लेट्स गो ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग गेट एब्सोल्यूट पाथ। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि पाथ हमें देना है, स्ट्रिंग तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। सो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, गेट ऑफ एब्सोल्यूट पाथ। अभी मैंने आपको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का डिफरेंस समझा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या दे रहा है, तो कोई भी फाइल या तो डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको देगा। ये एग्जांपल के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगी, डोंट वरी कि कैसे ये यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग गेट नेम। तो इसके अंदर क्या आएगा, फाइल और डायरेक्टरी का नेम हमें दिखाई देगा। गेट पाथ तो क्या होगा, तो पाथ, फाइल और डायरेक्टरी का पाथ हमें दिखाई देगा। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आए। एब्सोल्यूट दैट मींस पूरा पाथ आएगा,
और ओनली पार्ट दैट मीन्स सिर्फ नेम आएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसके बाद आएगा लॉन्ग लेंथ। तो क्या करेगा कि कितने बाइट की आपकी फाइल है वो मेजर करके आपको उसकी लेंथ बताएगा। इसके बाद ये दो जो है वो एरे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमें समझ आ जाएगा कि वो एरे है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने एरे का पूरा डिटेल में पढ़ा था। स्ट्रिंग लिस्ट, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी ये भी मैं आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ। जो भी हम फाइल हमारे फोल्डर के अंदर या तो डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है, जितनी भी फाइल है उसका पूरा लिस्ट हमें देगा। एंड उसके बाद आएगा फाइल लिस्ट फाइल। तो क्या करेगा, तो एरे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पार्ट नेम्स डिनोटिंग द फाइल्स इन द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर जो भी एक्सट्रैक्ट पार्ट नेम्स है वो हमें डिनोट करके देगा। ये हमें एग्जाम्पल में अभी मैं ये जो आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है ये प्रोग्राम मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन आपके बुक के अंदर ये सारा बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, बहुत लॉन्ग है, जो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो। यहाँ पे ये जो है ये कमेंट है, ये कमेंट है, इसे इग्नोर करना है, ये कमेंट है, इसे इग्नोर करना है हमें। और शायद मेरा प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो आपके प्रोग्राम से, लेकिन आउटपुट सेम ही है। मैं सारा कुछ सेम यूज करने वाली हूँ, कंटेंट थोड़ा शायद अलग हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रोग्राम करके दिखाऊंगी एंड उसके नेक्स्ट में आपको हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जितना हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। टिल देन हैव अ सेफ डे। ये प्रोग्राम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगी।